हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द क्वेश्चन बैलेंस्ड पैरेंथेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। व्हाट डज क्वेश्चन से? गिवन अ स्ट्रिंग ऑफ पैरेंथेसिस, चेक वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। सो हमें एक स्ट्रिंग दी गई है जो कि पैरेंथेसिस रिप्रेजेंट करती है। देयर आर multiple parentheses in a particular order and we need to tell whether that string is balanced or not. Balanced parenthesis is the one using which we can make a valid mathematical expression. Okay, so balanced means we can make a valid mathematical expression in that order of parenthesis. Okay, we'll see with the help of an example as well. Input format क्या है? First line contains a string which is of parenthesis. आउटपुट फॉर्मेट क्या है? अगर स्ट्रिंग जो है वो बैलेंस्ड पैरेंथेसिस रिप्रेजेंट करता है देन वी नीड टू प्रिंट बैलेंस्ड, अदरवाइज वी नीड टू प्रिंट नॉट बैलेंस्ड। कंस्ट्रेंट्स क्या है? जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो 10 की पावर 6 तक जा रही है एंड स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स है वो ओपनिंग या क्लोजिंग ब्रैकेट हो सकते हैं, आइदर सर्कुलर टाइप और स्क्वायर टाइप और कर्ली टाइप। ओके, सो लेट्स एन एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस भी मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज big of n, where n is the length of the string, and expected auxiliary space is also big of n. Okay, now let's start by understanding the question with the help of an example. So basically in the input you are given a string which represents which have some parentheses placed in a particular order, and we need to tell whether this string represents a balanced parenthesis or not balanced parenthesis. Now what do we mean by balanced parenthesis? See, अगर मैं आपको ये पैरेंथेसिस का ऑर्डर दूं तो क्या आप एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसमें प्लेस कर सकते हो? ऑब्वियसली यू कैन प्लेस इट लाइक दिस 5 into 3, सो दिस इज बैलेंस्ड। नाउ अगर ये है तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड। यू कैन से 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 - 2, राइट? सो यू कैन डू दिस एज वेल। हम जो है एक और चीज़ इस क्वेश्चन में हम सर्कुलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट इनमें कोई प्रायोरिटी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे। ओके, इट डज नॉट मीन कि आप सर्कुलर ओपनिंग ब्रैकेट को स्क्वायर से क्लोज कर दो। नो, दिस इज नॉट वैलिड, बट दिस हैज मोर प्रायोरिटी ओवर दिस, ऐसा कुछ हम अभी नहीं इसमें डिफाइन कर रहे हैं, राइट? नाउ does this make a valid parenthesis? Yes, you can place like this 2 + 3 multiplied by 5. Are you getting my point? What are one more, let's take one more. Is this balanced? Yes, again you can see, so you can do something like this: 5 + 3 multiplied by 2 + 3 into 6, and so this would be your second one, and you can close it like this, right? So this is also balanced. So these are all balanced. Okay, now the thing is, or you can also if you want to make one more, you can be like into 10, right? So now what are unbalanced? So this is unbalanced, right? This cannot represent a valid mathematical operation. Obviously this is not balanced. Then obviously this is also not balanced. Are you getting my point? So basically we will be given a string which basically can be this or this or this or this or anything. Okay, the length of the string can go up to 10 की power 6, and every character of the string can be either this opening bracket or this closing bracket or this opening bracket or this closing bracket or this opening bracket or this closing bracket, and we need to tell whether that is a balanced parenthesis or not. Question clear hai? Now, so what are some of the things which we need to observe here to tell whether it is balanced or not? So we can observe those things by looking at the examples of balanced and not balanced. ठीक है, पहली चीज, बैलेंस्ड पैरेंथेसिस में नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स एंड नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट सेम होंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 2 ओपनिंग ब्रैकेट है, 2 क्लोजिंग ब्रैकेट है, यहाँ पे भी 2 ओपनिंग ब्रैकेट है, 2 क्लोजिंग ब्रैकेट है, राइट? यहाँ पे देखो 2 क्लोजिंग ब्रैकेट है, 1 ओपनिंग ब्रैकेट है, ये भी इनवैलिड होगा अगर मैं कुछ ऐसा करूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो पहली चीज क्या है?
नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट मस्ट कम बिफोर क्लोजिंग ब्रैकेट। मतलब कि जैसे कि ये है तो ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोजिंग ब्रैकेट पहले आया, ठीक है। अब यहां पे देखो, फॉर एवरी रिस्पेक्टिव पेयर ओपनिंग ब्रैकेट मस्ट कम बिफोर क्लोजिंग ब्रैकेट। जैसे कि अगर मैं इस पेयर की बात करूं तो ओपनिंग ब्रैकेट इज बिफोर क्लोजिंग ब्रैकेट, अगर मैं इस पेयर की बात करूं तो ओपनिंग ब्रैकेट इज बिफोर क्लोजिंग ब्रैकेट, राइट। अगर ऐसा होगा तो ये भी इनवैलिड है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो ओपनिंग ब्रैकेट इज बिफोर क्लोजिंग ब्रैकेट, बट इसके रिस्पेक्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट इज बिफोर ओपनिंग ब्रैकेट, दैट इज नॉट वैलिड। सो for every pair of opening and closing brackets, for every pair of opening and closing brackets, opening bracket must be before closing bracket, opening bracket must be बिफोर क्लोजिंग ब्रैकेट, राइट। थर्ड चीज क्या है, थर्ड चीज अगर मैं यहां पे देखूं, अगर मैं कुछ एग्जांपल्स को देखूं, ठीक है ना, और यहां पे देखो, अगर मैं इस एग्जांपल को ठीक से ऑब्जर्व करूं तो पहले ये ओपन हुआ फिर ये ओपन हुआ, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास दो ओपनिंग ब्रैकेट थे, तो पहले क्लोज कौन सा होगा। मान लो ये पूरा एग्जाम्पल हम नहीं लेते, अगर मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं, अगर ये है तो ये एक ओपनिंग ब्रैकेट है, एक ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो अब पहले क्लोज कौन सा होगा, पहले ये क्लोज होना चाहिए फिर ये क्लोज होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस तरह से करता हूं तो ये तो इनवैलिड है, ये बैलेंस्ड नहीं है बट ये बैलेंस्ड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो एट अ पर्टिकुलर प्लेस, इफ यू ऑब्जर्व एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन द स्ट्रिंग, जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट्स बचे हैं जिनको क्लोज करना बाकी है, राइट, जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट्स बचे हैं जिनको क्लोज करना बाकी है, उनमें जो सबसे एंड में ओपन हुआ होगा वो सबसे पहले क्लोज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पॉइंट पे ऑब्जर्व करूं तो जो सबसे एंड में ओपन हुआ वो सबसे पहले क्लोज होगा, राइट। एंड मैंने ऐसा क्यों कहा कि उस पॉइंट पे जितने ओपनिंग ब्रैकेट क्लोज करना बाकी है, उसका क्या मतलब, बेसिकली ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो ओपनिंग ब्रैकेट तो मेरे पास 3 है, बट इसमें से कितने ऐसे जिनको क्लोज करना बाकी है, एक ये सर्कुलर और एक ये स्क्वायर, क्योंकि इसका तो पेयर ऑलरेडी मिल चुका है हमें। तो जो ओपनिंग ब्रैकेट्स ऐसे हैं जिनको क्लोज करना बाकी है, उनमें जो सबसे एंड में ओपन हुआ, मतलब कि ये वाला, वो पहले क्लोज होगा एंड बाद में ये होगा। क्लियर है। सो at a particular point, all those brackets या तो फिर at a particular point among all those brackets which are left to close, मतलब कि उनका रिस्पेक्टिव क्लोजिंग ब्रैकेट आना बाकी है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट अमॉन्ग ऑल दोज यू कैन से ओपनिंग ब्रैकेट्स विच आर लेफ्ट टू क्लोज, द वन विच ओपनड लास्ट विल क्लोज फर्स्ट, राइट। देखो मैं इसमें इतना टाइम क्यों स्पेंड कर रहा हूं, ताकि हम इंट्यूटिवली सोच सके कि यहाँ पे क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा और क्या हमारी अप्रोच होगी, वरना इसका सॉल्यूशन बताना तो 5 मिनट का काम है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमें चेक करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट, फॉर एवरी पेयर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट मस्ट बी बिफोर क्लोजिंग ब्रैकेट, एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट अमॉन्ग ऑल दोज ओपनिंग ब्रैकेट्स विच आर लेफ्ट टू क्लोज, द वन विच ओपनड लास्ट विल क्लोज फर्स्ट। जैसे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस इंडेक्स पे अगर मैं देखूं तो ये एक ओपनिंग ब्रैकेट है, ये एक है एंड ये है, बट ये तो क्लोज हो चुका है, तो अब इसको और इसको क्लोज करना पड़ेगा, तो ये बाद में ओपन हुआ था तो ये पहले क्लोज होगा,
राइट। अगर इस तरह का है तो पहले ये क्लोज होगा फिर ये क्लोज होगा। क्लियर है? तो एक चीज समझो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ओपनिंग ब्रैकेट इक्वल टू नंबर ऑफ ओपनिंग इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, हर एक पेयर में ओपनिंग पहले आना चाहिए, क्लोजिंग बाद में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम कुछ ऐसा करें, हम किसी डेटा स्ट्रक्चर में ओपनिंग ब्रैकेट स्टोर कर देते हैं एंड उसका जब रिस्पेक्टिव क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो उस ओपनिंग ब्रैकेट को निकाल देंगे। बिकॉज अगर ये आपकी स्ट्रिंग है पैरेंथेसिस की एंड अगर आप इस तरह से ट्रावर्स कर रहे हो एंड मान लो यहाँ पे आपको क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, तो यहाँ तक के ओपनिंग ब्रैकेट्स आपने एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लिए हैं, राइट। अब क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो इसका रिस्पेक्टिव ओपनिंग ब्रैकेट आप इस डेटा स्ट्रक्चर में सर्च करोगे। क्यों? क्योंकि इसका रिस्पेक्टिव डेटा स्ट्रक्चर इससे पहले आ जाना चाहिए। दैट इज व्हाट इज सेड इन पॉइंट नंबर 2। फॉर एवरी पेयर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट मस्ट बी बिफोर क्लोजिंग ब्रैकेट, राइट। सो फर्स्ट थिंग कि आपको जो ओपनिंग ब्रैकेट्स है वो आप एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हो एंड जब उसका रिस्पेक्टिव क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तब आप उस ओपनिंग ब्रैकेट को उस डेटा स्ट्रक्चर से रिमूव कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऐसा है तो ये मैं एक डेटा स्ट्रक्चर लेता हूँ, ओपनिंग ब्रैकेट आया मैंने इसको यहाँ पे स्टोर कर लिया, वापस ओपनिंग ब्रैकेट आया मैंने इसको यहाँ पे स्टोर कर लिया, क्लोजिंग ब्रैकेट आया मैंने इसके रिस्पेक्टिव ओपनिंग ब्रैकेट को निकाल दिया एंड देन क्लोजिंग ब्रैकेट आया मैंने उसके रिस्पेक्टिव ओपनिंग ब्रैकेट को इस डेटा स्ट्रक्चर में से निकाल लिया। क्यों ऐसा करेंगे? दो रीजन है। पहला रीजन, जब मेरा ओपनिंग ब्रैकेट ये है और ये उसका रिस्पेक्टिव क्लोजिंग ब्रैकेट है, अगर मैं इसको डेटा स्ट्रक्चर में से रिमूव नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये मैंने डेटा स्ट्रक्चर में डाल दिया, ये क्लोजिंग ब्रैकेट आया, वापस मैंने बोला इसका ओपनिंग ब्रैकेट है, वापस ये क्लोजिंग ब्रैकेट आया, वापस मैं इसको बोल दूंगा ये इसका ओपनिंग ब्रैकेट है, जबकि ये सही बात नहीं है। तो इस क्लोजिंग ब्रैकेट के रिस्पेक्ट में उसके ओपनिंग ब्रैकेट की पेयर जैसे ही मिल जाए इसको उस डेटा स्ट्रक्चर से रिमूव कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम क्या कर सकते हैं, उसका अगर हम अज्यूम करते हैं कि ओपनिंग ब्रैकेट पहले आया होगा तो वो उस डेटा स्ट्रक्चर में मिल जाएगा। दूसरी चीज, आफ्टर वी कंप्लीट ट्रावर्सिंग द होल स्ट्रिंग, अगर ये डेटा स्ट्रक्चर एम्प्टी मिलता है इसका मतलब नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स होंगे, अगर हम बीच में कहीं पे स्टक नहीं होते तो। ठीक है, अगर होंगे तो क्या होगा वो भी मैं डिस्कस करता हूं। अगर हम बीच में कहीं स्टक नहीं होते, हर एक क्लोजिंग ब्रैकेट के रिस्पेक्ट में उसका ओपनिंग ब्रैकेट हमें डेटा स्ट्रक्चर में मिल जाता है एंड जब भी नया ओपनिंग ब्रैकेट आता है हम उसको डेटा स्ट्रक्चर में वापस डाल देते हैं, तो लास्ट में अगर ये डेटा स्ट्रक्चर एम्प्टी है आफ्टर ट्रावर्सिंग द होल स्ट्रिंग, इसका मतलब नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स। सेकेंड पॉइंट कैसे वैलिडेट किया कि जब भी ओपनिंग ब्रैकेट आएगा हम उसको डेटा स्ट्रक्चर में पुश कर देंगे एंड जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो हम उसके रिस्पेक्ट में जो ओपनिंग ब्रैकेट होगा उसको डेटा स्ट्रक्चर में से सर्च करेंगे। अगर उसका ओपनिंग ब्रैकेट उससे पहले आया है तो डेटा स्ट्रक्चर में होना चाहिए, राइट। सो फॉर एवरी पेयर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट मस्ट बी बिफोर क्लोजिंग ब्रैकेट, राइट। एंड जब अगर ये क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तब अगर ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट डेटा स्ट्रक्चर में नहीं मिलता, इसका मतलब क्या है, इनवैलिड है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्ट्रिंग है, अगर ये क्लोजिंग ब्रैकेट मैंने एनकाउंटर किया और मैंने डेटा स्ट्रक्चर में सर्च किया कि क्या ये ओपनिंग ब्रैकेट है, नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इस क्लोजिंग ब्रैकेट के रिस्पेक्ट में ओपनिंग ब्रैकेट है ही नहीं, तो इनवैलिड है, हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो पहले दो पॉइंट वैलिडेट हो गए। अब थर्ड पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑल दोज ब्रैकेट्स विच आर लेफ्ट टू क्लोज द वन विच ओपनड लास्ट विल क्लोज फर्स्ट। अब एक चीज समझो, आपका कुछ ऐसा है, ठीक है, आपने इसको ट्रावर्स किया, आपने डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये ओपनिंग ब्रैकेट को डाल दिया, इस वाले को, फिर आप यहाँ पे आए, इस वाले ओपनिंग ब्रैकेट को डाल दिया, फिर आप यहाँ पे आए, आपने इसको रिमूव कर दिया क्योंकि इसका रिस्पेक्टिव ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट का पेयर बन गया, फिर यहाँ पे आए, आपने इस ओपनिंग ब्रैकेट को डेटा स्ट्रक्चर में डाल दिया, अब क्लोजिंग ब्रैकेट आया, ठीक है, तो अब आप इसको रिमूव करोगे, ठीक है, एंड देन जब ये आएगा तब आप इसको रिमूव करोगे। बट जब आप इस पॉइंट पे थे तब आपके पास ये भी ओपनिंग ब्रैकेट था, ये भी ओपनिंग ब्रैकेट था डेटा स्ट्रक्चर में, तो लास्ट में कौन सा आया कैसे पता चलेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक चीज समझो, ये स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, इससे आपको इस डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा यूज करना है। जो ब्रैकेट सबसे एंड में ओपन हुआ था उसका रिस्पेक्टिव क्लोजिंग ब्रैकेट सबसे पहले मिलेगा, ठीक है।
जो ओपनिंग ब्रैकेट सबसे एंड में ओपन हुआ था उसका रिस्पेक्टिव ब्रैकेट सबसे पहले क्लोजिंग मिलेगा, तभी वो वैलिड होगा, राइट। और जब हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है तब उसका रिस्पेक्टिव ओपनिंग ब्रैकेट हम डेटा स्ट्रक्चर में से रिमूव कर देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब अगर मैं पहले डेटा स्ट्रक्चर में ये डालूंगा उसके बाद ये डालूंगा तो रिमूव करते टाइम पहले ये रिमूव होना चाहिए फिर ये रिमूव होना चाहिए। यस, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर होना चाहिए। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये जो है ये अगर इस ओपनिंग ब्रैकेट के बाद डेटा स्ट्रक्चर में पुश होता है तो पहले पॉप होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब कि यहां पे हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली करना क्या है, इस स्ट्रिंग को ट्रावर्स करना है, जब भी ओपनिंग ब्रैकेट आएगा स्टैक में पुश करना है, जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो स्टैक के टॉप के साथ मैच करना है। अगर वो क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रैकेट की पेयर बनाता है इसका मतलब ऑर्डर सही है, उस ओपनिंग ब्रैकेट को स्टैक में से रिमूव कर देना है। अगर बीच में कहीं पे आपको क्लोजिंग ब्रैकेट के रिस्पेक्ट में ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक के टॉप में नहीं मिलता इसका मतलब इनवैलिड पेयर है। अगर आफ्टर कंप्लीटिंग द होल प्रोसेस स्टैक एम्प्टी नहीं है इसका मतलब भी ये वैलिड नहीं है, क्योंकि स्टैक एम्प्टी हो जाएगा अगर नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स और नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट सेम होंगे और सही ऑर्डर में होंगे। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को ले लूँ तो सबसे पहले आपका ओपनिंग ब्रैकेट आया, आपने स्टैक में पुश कर दिया, वापस ओपनिंग ब्रैकेट आया, आपने स्टैक में पुश कर दिया, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो आपने स्टैक के टॉप एलिमेंट के साथ मैच किया कि स्टैक के टॉप में जो ओपनिंग ब्रैकेट है मतलब कि जो एंड में पुश हुआ था क्या वो इसके रिस्पेक्ट में ओपनिंग ब्रैकेट है। हाँ है, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, तो आप इसको पॉप आउट कर दोगे एंड आपके स्टैक में ये बच जाएगा। क्यों पॉप आउट कर दिया? क्योंकि ये पेयर बन गई ना ओपनिंग और क्लोजिंग की, राइट। अब हमारे पास ये तो पेयर बन गई, ये निकल गया, राइट। अब वापस ओपनिंग ब्रैकेट आया, आपने स्टैक में पुश कर दिया, क्लोजिंग ब्रैकेट आया, आपने स्टैक के टॉप में सर्च किया। क्यों? क्योंकि जो सबसे लास्ट में ओपन होगा वो सबसे पहले क्लोज होना चाहिए, मतलब कि वो सबसे पहले पॉप आउट होना चाहिए, मतलब कि उस डेटा स्ट्रक्चर में से रिमूव होना चाहिए, मतलब हम स्टैक यूज कर सकते हैं। तो ये क्लोजिंग और ये ओपनिंग क्या मैचिंग है? हाँ, दोनों स्क्वायर है, तो पॉप आउट कर दो। वापस क्लोजिंग ब्रैकेट आया, क्या ये और ये मैचिंग है? हाँ मैचिंग है, वापस पॉप आउट कर दो। तो आफ्टर ट्रावर्सिंग द कंप्लीट स्ट्रिंग अगर आप कहीं नहीं अटकते हो एंड एंड में स्टैक एम्प्टी मिलता है इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट होंगे। हर एक पेयर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए ओपनिंग पहले आया होगा, क्लोजिंग बाद में आया होगा, सेकेंड पॉइंट भी वैलिड है। एंड जो अगर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मल्टीपल ओपनिंग ब्रैकेट्स ऐसे हैं जिनको क्लोज करना बाकी है, तो जो सबसे एंड में ओपन हुआ है वो सबसे पहले क्लोज हुआ होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया अगर स्टैक आपको एंड में एम्प्टी मिलता है एंड बीच में आप कहीं स्टक नहीं होते हो तो, राइट। एक आध इनवैलिड एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे कि ये देख लो। तो ओपनिंग ब्रैकेट आपने स्टैक में पुश किया, वापस ओपनिंग ब्रैकेट आया, स्टैक में पुश किया, क्लोजिंग ब्रैकेट आया, इसके साथ मैच हो गया, तो आपने इस ओपनिंग ब्रैकेट को पॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि ये पेयर बन गई। अब आपने तो पूरी स्ट्रिंग ट्रावर्स कर ली बट स्टैक में एक एलिमेंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स आर मोर देन क्लोजिंग ब्रैकेट्स, सो दिस इज इनवैलिड। सेकेंड एग्जाम्पल, आपका ओपनिंग ब्रैकेट आया फिर क्लोजिंग आया, क्या ये इसके रिस्पेक्ट में क्लोजिंग है? यस, तो इसको पॉप आउट कर दिया, फिर वापस क्लोजिंग आया, अब इस क्लोजिंग ब्रैकेट के रिस्पेक्ट में ओपनिंग ब्रैकेट है ही नहीं स्टैक में, राइट, इसका मतलब ये भी इनवैलिड है। अब ये देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स ज़्यादा थे, यहाँ पे नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स एंड क्लोजिंग ब्रैकेट सेम है, बट ऑर्डर क्या है? ये पहले क्लोजिंग ब्रैकेट आया, अब उसके रिस्पेक्ट में ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक में है नहीं, वो पहले आ जाना चाहिए था, इसका मतलब ये भी इनवैलिड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर ये देखो एक और, सबसे पहले ओपनिंग ब्रैकेट आया, आपने स्टैक में पुश किया, वापस ओपनिंग ब्रैकेट आया, आपने स्टैक में पुश किया, क्लोजिंग ब्रैकेट आया, आपने इसके साथ मैच किया, क्या ये मैचिंग है, रिस्पेक्टिव है? नहीं है, गलत है, ये बैलेंस्ड नहीं है। देन ये देखो, सबसे पहले स्टैक में आपने इसको पुश किया, देन आपने स्टैक में इसको पुश किया, देन क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो क्लोजिंग को स्टैक के टॉप के साथ मैच किया, क्या ये दोनों मैचिंग है? नहीं है, सो यू जस्ट रिटर्न इनवैलिड,
right? So the idea is to traverse the whole string of parentheses. When you get opening bracket, push it on the stack. When you get a closing bracket, match it with the top of the stack. अगर stack empty है तो return false, क्योंकि उस closing का respective opening नहीं है. अगर empty नहीं है stack, then match that closing bracket with the top of the stack. अगर वो दोनों pair बनाते हैं, then pop that element out, opening bracket. अगर वो pair नहीं बनाते, return false. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस अगर स्टैक एम्प्टी है देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टोटल आप एक लूप लगाओगे एंड स्टैक में आप n एलिमेंट्स पुश करोगे मैक्सिमम एंड n पॉप करोगे. ऑल आर बिग ऑफ n ऑपरेशंस. एंड ऑक्सिलरी स्पेस कितनी लगेगी? स्टैक में मैक्सिमम n एलिमेंट्स जाएंगे तो बिग ऑफ n. ठीक है. नाउ लेट्स कोड इट. सो लेट मी राइट अ न्यू फाइल हियर एंड लेट मी कॉल इट parenthesis. Okay, and I will say include iostream, include stack using namespace std int main, right? And I will say string s, which I will take from the user. I will say int n and I, and okay. And I can also take a flag variable which by default I will mark it as 0, and अगर कहीं mismatch होता है then I will make it 1. okay, now सबसे पहले हम string का input लेंगे user से and n is equal to s dot size. okay, now I need a stack of characters, so I will say stack and I will say st, right? Now for I equals to 0, I is less than n, I plus plus. अगर ith character string का opening bracket है तो stack में push करना है. So if s of I is equal to this, or s of I is equal to this, or s of I is equal to this, in that case stack dot push s of I. ठीक है. एल्स अगर ये क्लोजिंग ब्रैकेट है तो इसको स्टैक के टॉप एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है कि क्या ये रिस्पेक्टिव पेयर बनाते हैं कि नहीं. लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी हुआ तो रिटर्न फॉल्स करना है, बिकॉज उस क्लोजिंग ब्रैकेट का रिस्पेक्टिव ओपनिंग ब्रैकेट उससे पहले नहीं आया. सो इफ स्टैक डॉट एम्प्टी इज इक्वल्स टू ट्रू, देन आई विल मार्क माई फ्लैग वेरिएबल एज 1 एंड ब्रेक. ठीक है. अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है देन मुझे स्टैक के टॉप और एस ऑफ आई की पेयर को मैच करना है. सो इफ स्टैक डॉट टॉप इज इक्वल टू दिस ओपनिंग ब्रैकेट एंड एस ऑफ आई इज इक्वल टू दिस क्लोजिंग ब्रैकेट, तो वैलिड पेयर है. सो आई कैन पॉप आउट द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, क्योंकि उस ओपनिंग ब्रैकेट के रिस्पेक्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया है. अब उस पेयर को हम बाहर कर सकते हैं, राइट? else if stack dot top is equal to this opening bracket and s of I is equal to this closing bracket, ये भी सही पेयर है, तो I can say stack dot top. else if stack dot top is equal to this opening bracket and square and s of I is equal to square closing bracket, ये भी वैलिड पेयर है, so I can say stack dot pop. else इन तीन के अलावा कोई भी पेयर बन रही है. देखो ओपनिंग ब्रैकेट है तो हम पुश करेंगे, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो स्टैक के टॉप के साथ मैच करेंगे, बट अगर स्टैक एम्प्टी है तो तुरंत ही ब्रेक कर देंगे. अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो स्टैक के टॉप और एस ऑफ आई को मैच करेंगे. अगर इन तीन में से एक भी पेयर है देन इट्स वैलिड. इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है सो दैट्स नॉट वैलिड. सो फॉर एग्जांपल स्टैक के टॉप में जो है सर्कुलर ओपनिंग ब्रैकेट है, ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट आया पुश किया, ओपनिंग ब्रैकेट आया पुश किया, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट आया, वो इसके साथ पेयर नहीं बना रहा, तो इनवैलिड है ना. तो अगर इन तीन के अलावा कोई भी इनवैलिड पेयर बन रही है तो यू कैन मार्क फ्लैग एज 1 एंड यू कैन ब्रेक. ठीक है. नाउ आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द फॉर लूप, अगर स्टैक एम्प्टी है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, लेट्स से
इसका मतलब नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स वर मोर देन क्लोजिंग ब्रैकेट्स, या तो फिर हमने बीच में कहीं पे जो है ब्रेक कर दिया था, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज इफ स्टैक डॉट एम्प्टी इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अब बीच में ब्रेक कर दिया होगा तो हो सकता है स्टैक एम्प्टी भी हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया होगा तो हो सकता है एम्प्टी हो, राइट। बट अगर एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब तो क्या है, नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स फॉर मोर देन नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स, तो उस केस में भी फ्लैग को मैं 1 मार्क कर सकता हूं, राइट। तो एंड में अगर फ्लैग 0 रहता है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड है, एंड अगर फ्लैग 1 हो जाता है फॉर वॉट एवर रीजन, देन ये बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। एक फॉर लूप लग रहा है एंड मैक्सिमम एंड पुश एंड एंड पॉप ऑपरेशंस होंगे, वो भी बिग ऑफ इन टाइम है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू कंपाइल दिस। सो आई विल से clang प्लस प्लस parenthesis डॉट cpp माइनस o parenthesis डॉट आउट, ओके, एंड डॉट स्लैश parenthesis डॉट आउट। अब ये मुझसे एक स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा है, सो लेट मी गिव अ वैलिड स्ट्रिंग फर्स्ट। ओके, तो ये वैलिड है, आप देख सकते हो, कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग, कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग, कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग, देन सर्कुलर ओपनिंग, सर्कुलर क्लोजिंग, स्क्वायर ओपनिंग, सर्कुलर ओपनिंग, सर्कुलर क्लोजिंग, स्क्वायर क्लोजिंग एंड कर्ली क्लोजिंग, ठीक है। तो इसमें बैलेंस्ड इसने दे दिया। वापस रन करते हैं, अब इस बार जो है वो देते हैं कुछ ऐसा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सर्कुलर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट है उनका ऑर्डर गलत है, तो आ गया नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। सो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगेन ये 5 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर सकता था, बट इतना डेप्थ में क्यों गए, ताकि आपको इंट्यूशन आई कि स्टैक क्यों यूज करना है। यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए, ठीक है। आई होप आपको सोल्यूशन कंप्लीटली समझ में आया है। थैंक यू।